starting with the name of Allah Almighty. Assalamu alaikum and a very good evening, dear audience. Hope you are fine and doing well. I welcome you all to a very informative session organized by ICMA International. I am your session moderator Tatinda Rubab. Those who join us first time, I welcome you all to a very informative session. The main objective of this session is to guide you and inform you all about CMA professional qualification by interacting with our career counselors and students. During this session, we will also share the job opportunities by sharing the experience of our finalist students. In our today's session, our very honorable career counselor, Sir Muhammad Arsalan, join us. Sir is the Assistant Director Admission from ICMA Karachi campus. Sir, it's an honor to have you on board over here. Thank you very much. So, dear audience, Sir will guide us and provide us the broader view of CMA professional qualification. We will also take your live question during this session. So, let's start. It's over to you, sir. Thank you very much. Uh, Yeah. it's a pleasure having that opportunity actually to speak with the larger audience, and that too is actually possible with the help of social media and Exactly. your continuous uh, hard work that Thank you. actually bring us together today. Exactly. Thank you, sir. And I really believe that the today's session will be Exactly. really beneficial for our Inshallah. audience and as well as for the viewers that are listening to us, that are viewing us throughout the country as well as throughout the globe. Uh, Let me share my slides, please. Yeah, sure, sir. The slides are uploading currently. So actually जो हमारा सेशन है आज का that is more about communicating the audience the options, the real options that are available with them after their intermediate qualification primarily, and Exactly. the add-on that will boost the career for our graduates and master degree qualification holders. So that is actually the purpose of our today's sitting, and I believe that my slides are visible to all of Yes. you now. Yes. Thank you very much. Yeah. सो जो आज की प्रेजेंटेशन है हमारी इस प्रेजेंटेशन के अंदर वी विल टॉक अबाउट आईसीएमए व्हाट आईसीएमए इज व्हाट वी आर ऑफरिंग how we are contributing to the profession of management accounting in the country as well as throughout the globe, uh, who should study IC, yani management accounting, and how the management accounting qualification will add benefits to your credentials. Then I have included future CMA journey. I have included the opportunities that are available with our students and our team members. Then there are very few from around 8,000 success stories that I'm going to share with you because there is a time constraint and it is not possible literally to discuss each and every success story in a very short time span of 30-35 minutes, and then the steps that are available with us that a student can follow so then he can make it to the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan. अच्छा, अगर हम बात करें तो वी believe in excellence. We believe in the high quality education. We believe in an education that will create benefit for the individual, for the family, for the economy, and for the world entirely. So, जो ICMA की अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की जाए तो it is the only institute in Pakistan and the very first institute in Pakistan that is mandated with the assignment to regulate the profession of management accounting in the country. Number one, that should be very clear to all of us. फिर हम उसके अलावा अगर बात करें तो ICM में जो मार्ज़ वजूद में आया वो वजूद
दैट इज थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड उस वो एक्ट जो है वो हमें ये प्रोविजन देता है कि वी कैन नाउ प्रोवाइड एजुकेशन, द क्वालिटी एजुकेशन टू द एस्पायरेंट्स थ्रू आउट द कंट्री रिगार्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। फिर हम उनकी कॉम्पिटेंसीज को असेस कर सकते हैं एंड देन हम उनको सर्टिफाई कर सकते हैं एंड दैट सर्टिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट द कंट्री, तो थ्रू आउट द कंट्री बट एज वेल एज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो एक बेनिफिट हमें एडेड एडवांटेज नज़र आता है वो इस सूरत के अंदर नज़र आता है। फिर यहाँ पे हम इकोनॉमी की अपलिफ्ट के हवाले से, क्योंकि जब आप बेहतर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को मार्केट के अंदर लेके आ पाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अकाउंटेंसी की जो आपकी कॉस्ट सेविंग के हवाले से मामलात हैं, कॉस्टिंग के हवाले से हैं, ऑडिटिंग के हवाले से हैं, टैक्सेशन के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें देखने में नज़र आ रही होती है। उस तमाम सर्विसेज की वजह से आप बेहतर आउटपुट फैच कर पाते हैं रेदर देन कि आप कोई नॉमिनल जो है वो आउटपुट की तरफ जा रहे हो। और हमारा जो मकसद है, आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोग ना जानते हो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्टिफिकेशन हम अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो अवेयर रहें विद द मार्केट ट्रेंड, विद द मार्केट प्रैक्टिसेस, विद द न्यू डेवलपमेंट्स, हम कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड दैट इज़ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। कि हर साल कोई नई चीज़ें आई, उन नई चीज़ों को उन स्टूडेंट्स को सिखाया गया, उन मेंबर्स को सिखाया गया, सो देन वो मार्केट में ऑब्सोलीट ना हो जाए। तो वी बिलीव इन knowledge, high quality knowledge and growth of the country, of the individual, of the economy. अगर हम ICMA के हवाले से बात करें तो we have more than 7,500 members currently। 7,500 members के हवाले से बात करें तो members के हवाले से अगर मैं मज़ीद क्लेरिफाई करूँ तो that is our alumni network। alumni network या को हम members कहते हैं when it comes to Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan। फिर हमारे पास 1000 प्लस सर्टिफाइड डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हमारे पास जो है वो DTP की ट्रेनिंग हासिल की। वी हैव ओवर 17,000 स्टूडेंट्स करंटली इनरोल्ड इन ICMA नेशन वाइड, 250 plus employees, 10 education campuses. That is now the 10 education campuses are now increased to 11th one. The new one is open at Sakkar, and the 12th will be onboarded very soon in Karachi. That is our North Karachi campus, and we are expanding on daily basis. We are working really hard to expand our network. So then the students from far-flung areas can reach us, can join us, and can boost their career. So we are literally working on that very hard. We have 450 plus faculty members. We have 1,200 employers that are onboarded with us. अभी जो employers की यहाँ पे बात की गई है, इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो स्टूडेंट है या जो हमारा मेंबर है वो खुद जो है वो जॉब हंटिंग के प्रोसेस के अंदर जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। सो टू प्रोवाइड देम विथ ईज वी हैव ऑनबोर्डेड 1,200 प्लस एम्प्लॉयर्स दैट आर वेल acknowledged, well recognized employers throughout the country and globally, जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में, कोलैबोरेशन में हायरिंग कर रहे होते हैं हमारे स्टूडेंट्स की एंड हमारे अलुमनाई की या मेंबर्स की। We have 200 plus public practicing firms that are specifically related to management accounting consultancy, and we are present currently in 5 countries। 5 कंट्रीज हैं जहाँ पे हम जो है वो अपने ऑपरेशंस इस टाइम एक्सपेंड किए हुए हैं। इंटरनेशनल एफिलिएशंस के हवाले से बात करें और अगर नेशनल एफिलिएशन के हवाले से बात करें तो ICMA एक पायनियर इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के हवाले से, और इसी वजह से जो ICMA की क्वालिफिकेशन है उसको पाकिस्तान में मौजूद तमाम सरकारी इदारे बहुत बेहतर तरीके से रिकॉग्नाइज भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं और हमारी सर्विसेज को अप्रिशिएट भी करते हैं। अब वो चाहे जो है वो स्टेट बैंक हो, वो चाहे जो है वो FBR हो, वो चाहे SECP हो, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, वो हायर एजुकेशन कमीशन हो, यू ओनली नेम इट एंड फ्रॉम देयर
हमें वहाँ से जो है वो इनफ रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस जो है वो हर जगह से हमारे लिए मौजूद है। फिर हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के हवाले से बात करें तो हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। फिर मजीद हमारी जो एफिलिएशन है वो कैपा के साथ, सैफा के साथ, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क के साथ, आईएफआरएस के साथ, इन तमाम के साथ हमारी एफिलिएशन मौजूद है, जो कि बहुत देरीना और देरपा है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे एलुमनाई नेटवर्क है, इफ़ दे आर ऑप्टिंग टू वर्क इंटरनेशनली, तो वहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज किया जाए, और उनकी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पेश ना आए। जिस तरीके से मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन के हवाले से हमारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं तो इक्विवेलेंसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर इज़ अ वेरी cumbersome process to get equivalency of that equal qualification in over abroad। मगर यहाँ पे क्योंकि हमारी एफिलिएशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मौजूद है जो कि अकाउंटिंग को प्रमोट कर रही है, तो हमें बहुत बेहतर तरीके से और बहुत आसान तरीके से जो है वो एक्सेप्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो मिल रही है। फिर उसके बाद अगर हम फ्यूचर सीएमए जर्नी के हवाले से बात करें तो एक्चुअली जो एंट्री रूट्स हैं हमारे पास, यानी कौन एडमिशन ले सकता है और किस तरीके से एडमिशन ले सकता है, अगर हम इस हवाले से बात करें, एनीवन हु इज डन विथ हिज इंटरमीडिएट एग्जाम इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैकल्टी, उसने कॉमर्स में किया है, उसने इंजीनियरिंग में किया है, उसने आर्ट्स में किया है, उसने मेडिकल में किया है, कोई भी स्टूडेंट है, और उसको अगर अब ये लगता है कि आगे उसको अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए, तो आईसीएम में उसको जो है ये एडमिशन ऑफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ 12 ईयर क्वालिफिकेशन। टोटल 18 कोर्सेज और 6 प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स करने होते हैं किसी भी स्टूडेंट ने जब वो 12 ईयर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शायद कोई कनेक्टिविटी का किसी किस्म का मेरे एंड से इशू था। तो हम बात ये कर रहे थे कि 12 ईयर एजुकेशन की बेसिस पे जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसको 18 कोर्सेज करने होते हैं एंड 6 प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स करने होता है। हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर होता है वो ऑपरेशन लेवल का होता है, सेकंड ईयर जो है वो मैनेजरियल लेवल का होता है, थर्ड ईयर इज स्ट्रेटेजिक लेवल एंड फोर्थ ईयर इज प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे जब आप एडमिशन लेते हैं तो 12 ईयर की बेसिस पे तो देयर दैट वुड बी अ 4 ईयर प्रोग्राम that is equivalent to masters in commerce and that is recognized by higher education commission Pakistan। 18 कोर्सेज आपने यहाँ पे करने प्लस 6 प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स। अगर आप इंटर कॉमर्स की बेसिस पे एडमिशन ले रहे होते हैं तो देन देयर इज एन एग्जाम्पशन ऑफ अ कोर्स दैट इज जो हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग का कोर्स है, जो प्राइमरीली आपको ऑपरेशन लेवल 1 में पढ़ना होता है, उसकी आपको यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पशन मिल जाती है। देन अगर हम 14 ईयर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 1.5 ईयर जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। 1.5 ईयर से मुराद यहाँ पे ये है कि आप अपने जो क्वालिफिकेशन शुरू करते हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन शुरू करते हैं मैनेजरियल लेवल 1 से, एंड देन आपकी जो प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स हैं उनकी तादाद भी 6 नहीं रहती, वो कम होके कम हो जाती है। देन 16 ईयर एजुकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आपका एडमिशन जो है वो मैनेजरियल लेवल 2 पे होता है, और देन दैट वुड लास्ट फॉर अराउंड 2 ईयर्स। तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको सर्टिफिकेशन अवार्ड कर दी जाती है। 12 ईयर एजुकेशन पे जैसे कि यहाँ पे मेंशन है 4 ईयर्स का है। 14 या 16 ईयर एजुकेशन, अगर 16 ईयर एजुकेशन की यहाँ पे मजीद स्पेसिफाई कर दें कि अगर कोई ऐसी 16 ईयर एजुकेशन है जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, लेट्स से you have done your education in botany, zoology or whatever it may be, but other than commerce, then आपका जब एडमिशन होगा तो दैट वुड बी इन मैनेजरियल लेवल 1। फिर उसके बाद अगर आपका 16 ईयर है और आपने बिजनेस या कॉमर्स की स्टडीज ली है तो देन यू विल बी ऑनबोर्डेड ऑन मैनेजरियल लेवल 2। जब आपका मैनेजरियल लेवल 2 कंप्लीट हो जाता है तो आप एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट AFA सर्टिफाई हो जाते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट अवार्ड कर दिया जाता है एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड थ्रू आउट द कंट्री एज वेल एज ग्लोबली। फिर उसके बाद
अगर हम बात करें कि जब आप मैनेजरी लेवल 2 कंप्लीट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो यू विल बी अ सर्टिफाइड एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट। जब आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ऑल कोर्सेज अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स, तो आपको सीएमए चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन अवार्ड कर दी जाती है। अगर आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है with the qualification, so you will be awarded with associate chart cost and management accountant qualification अगर आपका 3 years एक्सपीरियंस है along with your qualification। एंड अगर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी ये पोस्ट क्वालिफिकेशन 5 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर एसीएम में, तो वहाँ पे जो है वो आपको फेलो मेंबर्स की या फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो सर्टिफिकेशन है वो अवार्ड कर दी जाती है। अगर हम स्टडी ऑप्शंस की बात करें तो वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपसेस दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, और उनमें तमाम जो आसाइशें हैं, तमाम एमिनिटीज़ हैं, वो मौजूद हैं। आप यानी फुली इक्विप्ड क्लासरूम्स की बात करें, आप लाइब्रेरी की बात करें, आप सेमिनार हॉल्स की बात करें, आप ट्रेनिंग लैब्स की बात करें, आप इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करें, तमाम जो एमिनिटीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज़ हैं जो कि कोई भी इदारा पाकिस्तान के अंदर बेहतर से बेहतर ऑफ़र कर सकता है, वो हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। फिर हमारी जो मज़ीद अगर हम फ्लेक्सिबल ऑप्शंस के हवाले से बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट के पास एक्चुअली 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो बड़ा बुनियादी ऑप्शन है, एंड दैट इज़ ऑन कैंपस क्लासेस या ऑन कैंपस एजुकेशन। यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों मूड्स के अंदर जो है वो क्लासेस हो रही होती हैं। स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे कैंपस अटेंड करता है, यहाँ पे क्लासेस लेता है एज पर देयर कन्वीनियंट, मॉर्निंग में या इवनिंग में, एंड देन वो अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करता है या परसू करने की तरफ जा रहा होता है। मजीद विद द डेवलपमेंट इन द डिजिटल एरेना, we have recognized that there should be a privilege for the students that are actually based on a far-flung areas, or that are actually having a very tight routine, very busy schedule. So to compensate these students, we actually have an idea to provide them with the quality education through digital platforms. So for that purpose, हमने जो है वो DLP डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इनिशिएट किया, एंड इन दैट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कैन स्टडी ऑन हिज ओन। वो बड़ी ईज़ के साथ, बड़ी आसानी के साथ घर बैठ के जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू रख सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, तमाम जो रीडिंग मटेरियल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और जो भी सपोर्ट किसी किस्म की उसको रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड है, वो तमाम की तमाम उसके पोर्टल पे उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। एंड देन स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस के साथ घर बैठ के अपने पोर्टल को लॉगिन करता है, एंड लॉगिन करने के बाद वो उस अपने कोर्सेज को एक्सेस कर पाता है, और देन वहाँ पे वो बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पा रहा होता है। तो ये जो है वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के हवाले से जो है वो एक बेसिक आइडिया है। फिर स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें आप देखते हैं कि किनशिप बेस्ड डिस्काउंट होता है फॉर स्टूडेंट्स, हाफिज़ कुरान का होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, उनको भी जो है वो कंपनसेट किया जाता है विद द डिस्काउंट। फिर मेरिट बेस है, 100% स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट दैट इज़ हैविंग मोर देन 90% मार्क्स इन बोर्ड्स। फिर हम जब बात करते हैं 85+ टू 90% मार्क्स पे, हम 70% जो है 75% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और 75% से लेके 84% मार्क्स तक हम 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अच्छा, ये तो कुछ एक डेजिग्नेटेड डिजायर्ड क्राइटेरिया है जो कि ऑलरेडी सेटल्ड है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है दैट इज रिजर्व विद अस फॉर द नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि हम स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हम अवॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास
बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, जो कि नीडी स्टूडेंट्स को या फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी एजुकेशन के अंदर। और इस सूरत हाल के अंदर जो है वो 100% तक स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब CMA क्वालिफिकेशन जब आप हासिल कर लेते हैं या जब आप हासिल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिन एरियाज के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपीरियंस करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, जिनमें एक्सपर्टीज या ग्रिप या कमांड हासिल कर लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स। वो एरियाज कौन से हैं? उन एरियाज में सबसे पहले अकाउंट्स एंड टैक्सेशन है, लीगल अफेयर्स एंड सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिसेस हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट है कि किस तरीके से बेहतर तरीके से रिसोर्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके, रिस्क एनालिसिस एंड ऑडिट है, फाइनेंस एंड ट्रेजरी है, बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये कुछ चंद जो है एरियाज यहाँ पे मेंशन है जो कि डेफिनेटली बूस्ट होते हैं जब आप इस क्वालिफिकेशन को परस्यू कर रहे होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। यहाँ पे जो है वो कुछ ग्लोबल कैरियर अपॉर्चुनिटीज के हवाले से तस्करा किया गया है सॉरी, कि ग्लोबली जो एक्सेप्टेंस है इस क्वालिफिकेशन की वो कहाँ यानी किस हद तक जो है वो है। तो जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट है अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स की वो 7% ग्रो उसने किया है फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2020 टू 2030 तक, यानी वो 7% उसमें मजीद इजाफा होगा जो एक्सेप्टेंस है ऑडिटर्स की एंड अकाउंटेंट्स की। और ये रिपोर्ट है US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की। कहने का मकसद ये है कि विद द पासिंग टाइम देयर इज कीप ऑन ग्रोइंग डिमांड फॉर द अकाउंटेंट्स इन द मार्केट। फिर अगर हम इसके अलावा बात करें तो बहुत ज़्यादा डिमांड हमने रिसेंट पास्ट के अंदर देखा है CMA क्वालिफिकेशन की हमें मिडल ईस्ट के अंदर नज़र आती है, जो कि डेली बेसिस पे जो है वो ग्रो कर रही है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें इसके अंदर देखने पे मिली है। फिर इसके बाद मज़ीद कॉम्पिटिटिव जो सैलरी एडवांटेजेस हैं जो कि अकाउंटिंग प्रोफेशंस के अंदर हैं, तो यहाँ पे कुछ सैलरीज मेंशन है मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस के साथ, जिसमें जो एवरेज सैलरी CFO की मेंशन है दैट इज़ अराउंड $150,000। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की जो सैलरी है दैट इज़ $102,000। कॉर्पोरेट कंट्रोलर की जो सैलरी है दैट इज़ $100,000। और ये एवरेज सैलरीज हैं, इससे जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। मज़ीद अगर हम एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें तो जो CMA क्वालिफिकेशन जो लोग एक्वायर करते हैं वो किस इंडस्ट्री के अंदर किस हद तक जो है वो मौजूद है, वो ब्रेकअप हमारे पास नीचे मौजूद है। 30% जो हमारे क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट के अंदर 9% है, एजुकेशन में 8%, होलसेलर एंड रिटेल ट्रेड के अंदर 7% जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास मौजूद है। फिर बहुत ज़्यादा जो है वो हमें ग्रोथ नज़र आती है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के हवाले से पाकिस्तानी जॉब मार्केट के अंदर। पाकिस्तान में जिसकी आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है, वी हैव ओनली 60,000 अकाउंटेंट्स दैट आर करंटली सर्विंग इन पाकिस्तान। फिर मज़ीद हम बात करें तो SECP से रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, उनकी तादाद में जो है वो रिसेंट पास्ट के अंदर हमने देखा है कि इजाफा हुआ है। एंड फ्रॉम दैट रिपोर्ट वी कैन conclude that 40,000 accountants will be needed in the coming years in Pakistan। फिर अगर हम इसके हवाले से मज़ीद बात करें तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का फोकस हमने आजकल जो है वो ऑब्जर्व किया है when it's come to hiring of professional accountants, so then they can have a better decision making and financial discipline। फिर अगर हम मज़ीद बात करते हैं तो ICMA अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है so then ICMA can facilitate its member and students by organizing rigorous talent management programs। इंडस्ट्रियल लिंकेजेस पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है और करियर काउंसलिंग के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो रिसेंट पास्ट के अंदर पिछले 2-1 सालों के अंदर you guys must have observed the career fairs that have organized
नेशन वाइड बाय आर कैंपसेस। तो उससे जो है इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स दैट आर onboarded with us, and we are working on regular basis to improve these numbers so that we can facilitate our members and students in a better manner. सक्सेस स्टोरीज के हवाले से बात करें तो ये मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद में से कुछ लोग हैं जिनका यहाँ पे जो है वो तस्करा किया जा रहा है। ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं फ्रॉम अ वेरी लार्ज नंबर। मिस्टर जमील अहमद, he is serving as the governor of State Bank of Pakistan. He is our proud member. Mr. Javed Ghulam Mohammed, he is Group Managing Director and CEO of Martin Dow Group. Badiuddin Akbar Saab जो हैं, he is CFO and COO at National Clearing Company of Pakistan. फिर कामरान अहमद हाशमी साहब जो हैं, ही CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान। एंड अब्दुल सत्तार जुमानी साहब, ही CEO एट यूनस एनर्जी लिमिटेड एंड लकी रिन्यूएबल्स। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद में से कुछ चीदा चीदा नाम है जिनका सक्सेस स्टोरीज के हवाले से यहाँ पे तस्करा किया गया। कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी जो है वो नेशन वाइड प्रेजेंस जो है वो मौजूद है। आप इस बार कोड को स्कैन करके हमारी कैंपसेस की डिटेल हासिल मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे कैंपसेस अगर मैं एक सरसरी तौर पे बताऊं तो कराची के अंदर वी हैव 4 कैंपस राइट नाउ। वी हैव 1 कैंपस इन हैदराबाद, वी हैव 1 कैंपस इन सक्खर, वी हैव कैंपस इन मुल्तान, वी हैव कैंपस इन लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद एंड पेशावर। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रोफेशन के अंदर एकोमोडेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए हमने इस्टेब्लिश किया है। थैंक यू वेरी मच। यू मे आस्क फॉर क्वेश्चंस नाउ इफ यू हैव एनी। Sir, I wanted to ask one question. Sir, मैं आपसे पूछना चाह रही थी that can you please guide me about merit certificates for new operational level students? अच्छा, अगर हम मेरिट सर्टिफिकेट के हवाले से बात करते हैं तो मेरिट सर्टिफिकेट और स्पेशल मेरिट ऑफ सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। मेरिट सर्टिफिकेट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लेट से आप ऑपरेशन लेवल 1 के अंदर हैं और आप 3 सब्जेक्ट्स के अंदर इनरोल्ड हैं। आपका लेट से फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो है यू आर हैविंग द मोस्ट मार्क्स थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं थ्रू आउट द कंट्री एंड दैट मस्ट बी मोर देन 70% मार्क्स। तो इस सूरत के अंदर जो है वो आपको मेरिट सर्टिफिकेट जो है वो अवॉर्ड किया जाता है। फिर स्पेशल मेरिट सर्टिफिकेट जो है उसमें जो है वो बुनियादी शर्त यह है कि आपके के तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर नेशन वाइड जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स हों। यहाँ पे कुछ जब आप स्पेशल मेरिट सर्टिफिकेट, स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अटेन करते हैं तो वहाँ पे उसकी प्रिविलेजेस में से कैश अमाउंट जो है वो भी प्रिविलेज के अंदर शामिल है। अच्छा, इसमें रिपीटर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सेकंड टाइम अटैम्प्ट दे रहे हैं या रिपीटर हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। तो दैट शुड बी योर फर्स्ट अटैम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल, और वहाँ पे जो है वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दिखानी होती है, शो करनी होती है। थैंक यू सर। जी सर, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। Is it beneficial to join firms to gain experience after CMA Inter, 1-year training opportunity offered by ICMA? अच्छा, देखें, जहाँ तक CMA फर्म्स के हवाले से बात है, जहाँ तक आपका क्वेश्चन मैं समझ पाया हूँ, दैट इज़ लाइक के क्या जो CMA क्वालिफिकेशन है उसके बाद आपको CMA फर्म्स ज्वाइन करनी चाहिए
एंड वो कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है। अच्छा देखें, CMA जो फर्म्स हैं, that are specialized firms that are working in the area that are having sufficient privileges available with them। तो जब आप अपनी क्वालिफिकेशन के साथ या क्वालिफिकेशन के दौरान कोई भी काम कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, तो वो मज़ीद आपकी स्किल्स को पॉलिश करता है, बूस्ट करता है। सबसे जो बेहतर बात CMA क्वालिफिकेशन की है वो ये है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो जब अपना AFA कंप्लीट करता है, दैट इज़ कि वो मैनेजरी लेवल 2 में है या मैनेजरी लेवल 2 उसने पास किया ही होता है, तो वहाँ पे उसकी जो है जॉब प्लेसमेंट हो जाती है, आया थ्रू द मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूट और बाय थ्रू हिज ओन मींस। तो जब उसकी प्लेसमेंट हो जाती है तो वो जॉब मार्केट के अंदर चला जाता है और वहाँ पे वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो जॉब मार्केट का एक्सपोजर है, जॉब मार्केट का या फर्म का, वो एक्सपोजर एक्चुअली आपकी स्किल्स को जो कि आपने लर्न की होती हैं थ्रू द लेक्चर्स इन द क्लासरूम्स, उसको मज़ीद पॉलिश करता है। आपको उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ में आने लगती हैं, आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड समझ में आने लगते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि किस पर्टिकुलर केस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है रियल लाइफ बेसिस के अंदर। आप अपनी स्टडीज़ को केस स्टडी बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, तो देयर इज ऑलवेज अ वेरी गुड ऑप्शन व्हेन इट्स कम टू लर्निंग। जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वालिफिकेशन के साथ साथ, क्योंकि प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ जो है वो एक्सपीरियंस भी हासिल करते रहें ताकि आपकी लर्निंग जो है वो मज़ीद इन्हांस हो सके। Sir, if a student needs to immigrate to another country or foreign country, how can we enroll for CMA over there? देखें, अगर आप स्टूडेंट वांट्स टू, तो डेफिनेटली है। देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्चुअली शिफ्टेड टू द फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली इन द, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शिफ्ट किया, रिलोकेट किया टू द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज एंड अरब वर्ल्ड, और वहाँ पे जो है वो जॉब कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर शिफ्ट करते हैं तो आपके पास कोई बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है जब भी आप करते हैं। मगर एक बात का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के अपनी क्वालिफिकेशन का कंप्लीशन जो है वो आपके लिए मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं करते तो आप एक जगह जाके स्टक हो जाते हैं। अच्छा, हमने इस बात को कंसीडर करते हुए ये ऑप्शंस हमारे स्टूडेंट्स के पास जो है वो मौजूद हैं कि अगर वो ग्लोबली कहीं पे जाते भी हैं तो द ऑप्शन ऑफ DLP, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इज अवेलेबल विद देम। दे कैन एनरोल देमसेल्फ इन द DLP प्रोग्राम एंड वहाँ पे जो है वो पढ़ भी सकते हैं, वहाँ से वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, थ्रू द वर्चुअल एग्जामिनेशन सिस्टम, और वो अपनी एजुकेशन को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। And how to manage time for जी प्लीज़। how to manage time for study with a job? Any good approaches for this? अच्छा, देखिए, व्हेन इट्स कम टू मैनेजिंग द टाइम, देखिए इतना ज़्यादा टाइम जो है ना वो आपका इन्वेस्ट नहीं हो रहा होता। अगर आप रोज़ का पढ़ के जो है वो रोज़ रिवाइज कर रहे हैं तो वो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं होगी। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं और डेली बेसिस पे जो है वो उसको रिवाइज कर पा रहे हैं तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी व्हेन इट्स कम टू मैनेजिंग योर एजुकेशन। अच्छा, अब आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं, अच्छा आप जॉब भी कर रहे हैं और आपकी एजुकेशन जो है वो भी साथ चल रही है। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, या तो आप जो है वो ये 4 साल, क्योंकि जो आप जॉब कर रहे हैं ना वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि दैट इज़ अगेन पार्ट ऑफ योर लर्निंग, योर एक्सपोजर, ठीक है। आप मज़ीद स्किल्स को जो आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो मज़ीद आपकी लर्निंग को जो है वो स्ट्रेंथन करता हुआ जा रहा है, ठीक है। या तो आप ये 4 साल थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें
थोड़ा सा लेजर के लिए टाइम कम निकालें, आप अपनी जॉब को फुल टाइम दें, आप अपनी क्वालिफिकेशन को, एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, डेली बेसिस पे जो है उसको रिवाइज करते रहें, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें, तो देन आपके पास 24 घंटे है, दैट इज मोर देन इनफ टाइम कि आप उसमें जो है वो अपने लिए लेजर का टाइम निकाल सके। और मैं आपको जो है वो एक और बात ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बताऊं, और ये आपको बहुत सारे लोग ये बात बता सकेंगे कि ये जो 2 4 5 साल हैं आपकी प्रोफेशनल स्टडीज के, आया आप इनको बेहतर तरीके से कैपिटलाइज कर लें और आप फिर अपनी आने वाली सारी जिंदगी जो है वो बहुत फुल ऑफ लेजर एंड एंजॉयमेंट गुजारें, या आप ये 2 4 साल जो आपके एजुकेशन के हैं इसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लें। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो दैन गॉड फॉरबिड आपको अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती है। जी प्लीज़। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस insights. जी स्टूडेंट्स, आप में से किसी का कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप सर से कर सकते हैं। सर एक्चुअली ऑडियंस की साइड से कुछ जी सर। जी जी, मैं शायद ऑडिबल नहीं रही आप इनके लिए, मैं इनको दोहरा देता हूँ कि मैडम जो क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं वो ये पूछना चाह रही हैं कि आप लोगों के पास से कोई मजीद क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क प्लीज़। आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, आप लोग म्यूटेड हैं फिलहाल। जी सर, ऑडियंस की साइड से कुछ क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं। बेसिकली अंसा मुनीर है, शी वांट टू नो म्यूट व्हाट करके इज आप द क्वेश्चन स्कोप। अपना जो है वो पूछ सकते हैं, फिलहाल जो है वो आप लोग म्यूटेड हैं। जी सर, इज आई एम ऑडिबल टू यू? जी जी, यू आर ऑडिबल टू मी, यू आर ऑडिबल। सर ऑडियंस की साइड से अंसा मुनीर का क्वेश्चन है, शी वांट्स टू नो व्हाट इज द स्कोप ऑफ आईसीएमए इन गवर्नमेंट सेक्टर। इन गवर्नमेंट सेक्टर जी जी, देखें, प्राइमरीली तो मैंने जैसे कि अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताया कि जो सीएमए क्वालिफिकेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू द मास्टर्स इन कॉमर्स क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो जितने बड़े एग्ज़ाम होते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के, जिसमें जनरल डिग्री रिक्वायर्ड होती है मास्टर्स की, वहाँ पे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, चाहे वो सीएसएस का इम्तहान हो, चाहे वो पीसीएस का इम्तहान हो, या चाहे वो कोई और जेनरिक कैटेगरी की जॉब हो। अच्छा, एक तो हवाले ये हैं। फिर देन देयर आर स्पेशलाइज्ड पोजीशंस दैट इज़ मोर रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रोफेशन, जिसमें हमारे पास ऑडिट एंड टैक्सेशन के हवाले से जो मुख्तलिफ पब्लिक ऑन एंटिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे जॉब्स आ रही होती हैं, ऑडिटर की, अकाउंटेंट्स की, फाइनेंशियल एनालिस्ट की, फिर सीनियर ऑडिटर्स की बहुत सारा पोजीशंस हमें रिसेंट पास्ट के अंदर जो है वो देखने को मिली हैं। फिर ऑडिट एंड अकाउंट्स के हवाले से हमने रिसेंट पास्ट के अंदर वापडा में जो है वो पोजीशंस देखी थी जो रिसेंट पास्ट में अनाउंस हुई थी। तो उन तमाम के अंदर जो है ना सिर्फ हमारा जो स्टूडेंट या जो क्वालिफाइड मेंबर्स है वो एलिजिबल हैं, बल्कि वो इन पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस के लिए प्रेफर्ड कैंडिडेट्स भी हैं, बिकॉज जो उनकी तमाम एजुकेशन है, जो तमाम क्वालिफिकेशन है, वो स्ट्रिक्टली बेस करती है उन्हीं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्सेज पे, जो कि एक बहुत कोर एक्सपर्टीज उनके अंदर इनेबल कर देती है कि वो किसी भी स्पेशलाइज्ड जॉब को परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। सर फरजान सत्तार हैं, इनका क्वेश्चन है अबाउट ऑनलाइन क्लासेस के वाया जूम जो है वो आईसीएमए कोई क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो हमें डीएलपी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि डीएलपी के थ्रू किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं डीएलपी के हवाले से डिस्कशन की तरफ आऊँ तो ये जो डीएलपी प्रोग्राम है दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू कि आप जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले लें। ठीक है, यहाँ पे जो तमाम स्टडी मटेरियल है, स्टडी रिसोर्स है, हम ये इंश्योर करते हैं कि वो स्टूडेंट के पोर्टल पे स्टूडेंट के साथ अवेलेबल हो। ठीक है, तो वो स्टूडेंट के पास जो है वो अवेलेबल होता है, वो स्टडी रिसोर्स हो सकता है, स्टडी मटेरियल हो सकता है, अलॉन्ग विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स।
ठीक है, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्वालिटी को इस हद तक इंश्योर किया जाता है कि वो किसी भी स्टूडेंट की तमाम नहीं भी तो मैक्सिमम क्यूरीज को जो है वो रिस्पॉन्स कर सके। मगर इंसान जो है वो समहाउ मिस्टेक कर सकता है। कोई अगर ऐसा केस होता है जिस केस के अंदर आपको लगता है कि आपने एक ऑनलाइन लेक्चर जो वर्चुअली अटेंड किया, उस स्टडी रिसोर्स के अंदर भी एम्पल जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं थी कि जो कि आपकी क्यूरी को या कंफ्यूजन को रेक्टिफाई कर पाती, तो इस सूरत के अंदर जो है वो फिर आप अपने कैंपस से कोऑर्डिनेट करके किसी भी टीचर्स जो रेलेवेंट टीचर है उस कोर्स का, उस टीचर के साथ जो है वो कैंपस आपकी डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन सेटअप करवाएगा और आपकी क्यूरी को जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो जो मकसद हमारा है वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम मैक्सिमम 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 एंड पे स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर सकें कि क्वालिटी एजुकेशन उसके पास मौजूद हो, ये अपॉर्चुनिटी उसके पास मौजूद हो और उसको किसी भी किस्म का सरवाइव ना करना पड़े ड्यूरिंग द जर्नी। Thank you so much, sir, for providing this insightful information. अब मैं फारूक अहमद की साइड पे मूव करना चाहूँगी। फारूक अहमद, इज आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. Alright, good, thank you. जैसा कि मैंने बताया था, the main purpose of this session is to interact you with our career counselors and students. तो आज इस सेशन में हमें बहुत ही डेलिजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। फारूक जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवल से हैं और इसके साथ साथ वो जॉब भी कर रहे हैं। तो फारूक की जो ICMA की जर्नी है वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। जी प्लीज़ फारूक, आप अपनी ब्रीफ प्रोफाइल हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। Assalamu alaikum. My name is Farooq Ahmed. I am currently a student of ICMA in SL1. I am Alright. currently doing job in GUM Corporation as a MTU. Good. Good. अच्छा फारूक, हाउ enriching is your experience with ICMA पाकिस्तान? ICMA के साथ अभी तक की जो आपकी जर्नी है, जो एक्सपीरियंस है, किस तरह से ICMA ने आपको सपोर्ट किया इन सर्च ऑफ जॉब? क्या क्या मार्केट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ड्यू टू ICMA आपने अवेल की? काइंडली हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। ICMA के साथ जर्नी काफ़ी अच्छी रही। मैंने ICMA ज्वाइन की थी 2021 में। मेरा बैकग्राउंड था प्री मेडिकल बैकग्राउंड, तो प्री ओके। मेडिकल बैकग्राउंड से स्विच करना तो कॉमर्स में थोड़ा मुश्किल तो था, चैलेंजिंग तो था, जी जी। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिले जो हमारे सीनियर थे, वो बहुत अच्छे मिले, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया हमें और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सही टाइम से पेपर निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 14 पेपर मेरे पास है। ऑलराइट, गुड। अच्छा फारूक, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप जॉब भी कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक लेवल पे माशाल्लाह से आप स्टडी कर रहे हैं, तो किस तरह से जो है आप अपनी स्टडी को मैनेज करते हैं विद जॉब? क्या जो है वो आप शेड्यूल फॉलो करते हैं कि आप इजीली जो है अपनी स्टडी जो है अपनी जॉब के साथ मैनेज कर रहे मेरी 9 to 6 जॉब होती है, उसके बाद हैं? मैं जॉब के बाद लाइब्रेरी जाता हूँ। 7 से 10 बजे तक 3 घंटे मैं लाइब्रेरी को दे देता हूँ, तो मेरी स्टेट मैनेज हो जाती है, क्योंकि मुझे ऑलराइट। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कोई नहीं होती है, तो इसीलिए जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा आसान है। ऑलराइट। जी। थैंक यू। अच्छा फारूक, आप कोई मैसेज या एडवाइस देना चाहें हमारे उन प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को जो इन फ्यूचर CMA क्वालिफिकेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं? स्पेशली अगर हम बात करें हमारे उन स्टूडेंट्स की जो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, दे आर वरीड अबाउट दियर फ्यूचर, लाइक किस फील्ड में जाएं, किस डिसिप्लिन को चूज़ करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कोई मैसेज या एडवाइस देना चाहें रिगार्डिंग CMA प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्लीज़? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि IC में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है, बहुत सारे अटैम्प्ट लग जाते हैं और फेल भी करते हैं। मैंने सुना है, मतलब कहते हैं काम फेल करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रॉपरली स्टडी करते हैं, प्रॉपरली स्टडी को टाइम देते हैं और प्लानिंग, जी मेन जी। चीज़ होती है प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग के साथ किसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो वो आसानी से हो जाती है, एग्जैक्टली। इतनी मुश्किल फेस करनी नहीं पड़ती हैं। थैंक यू फारूक फॉर दिस इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। एसना की साइड पे मूव करना चाहूँगी। एसना, आप इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहें, कोई मैसेज या एडवाइस देना चाहें हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग CMA क्वालिफिकेशन? आई एम सॉरी, मैं आपकी आवाज़ सही से सुन नहीं सकी। जी, एसना, आप कोई मैसेज या एडवाइस देना चाहें हमारे उन प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को जो इन फ्यूचर CMA क्वालिफिकेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं?
Can you hear me? एसना आपको यस, आवाज आ रही? आईसीएमए के अंदर हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं एंड एज फारूक अहमद सेड कि इतना भी मुश्किल नहीं है इफ़ वी प्रॉपरली सेट आवर स्केड्यूल। डेली बेसिस में जो लेक्चर्स हम देते हैं उसको रिकॉल करते रहें, ओवरव्यू करते रहें, तो बाय द टाइम अटेम्प्ट के टाइम तक हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। एंड प्लस टीचर्स आर रियली गुड, रियली ऑनरेबल टीचर्स। हमारे अभी जो ML1 के भी टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, उनसे काफ़ी गाइडेंस मिलती है। सो आई थिंक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर हम प्रॉपरली पढ़ें। थैंक यू। जी नेहा की साइड पे मूव करना चाहूंगी। नेहा आप इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहें? नेहा आपका माइक म्यूट है, काइंडली अनम्यूट कर लें। मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब जो स्टूडेंट सोचते हैं कि आईसीएम बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं कर सकते, तो अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, हर चीज़ रिकॉल करते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। और टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप उनसे पूछते हैं तो आपको इजीली गाइड कर देते हैं। थैंक यू सो मच। जी लास्ट व्यू लेना चाहूंगी सर का। जी सर अरसलान, आप इस पर कुछ व्यूज देना चाहें प्लीज। सर आपका माइक आई गेस म्यूट है, काइंडली अनम्यूट कर लें। Sorry, this is one of the best qualification that is available to the students in the country. ठीक है, तो ये that is actually a life changing qualification. मैं ये हरगिज़ नहीं बोलता कि दूसरी कोई क्वालिफिकेशन जो है वो वैल्यू ऐड नहीं कर सकती, बट दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट qualification that literally I have witnessed over the period of my stay at ICMA. तो वाकई आप बहुत कुछ सीखते हैं। वाकई जो है वो प्लेसमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार है जो कि प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बखूबी निभा रहा है। और सिर्फ जो स्टूडेंट है उससे जो है वो एक ही रिक्वेस्ट हमारी रिपीटेडली रहती है कि आप जो है वो सुनी सुनाई पे यकीन ना करें। ठीक है, अपने आप पे बिलीव करें, बेहतर से बेहतर प्रिपेयर करें, अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम दें, एंड आप डेफिनेटली यू विल गोइंग टू प्रोसीड फर्दर टू द स्काई। कोई प्रॉब्लम आपको ड्यूरिंग द जर्नी फेस नहीं आएगी। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू कमेंट अबाउट। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। साइड पे मूव करने जा रहे हैं। ऑडियंस की साइड से एक क्वेश्चन है फरमान अली का। दे वांटेड टू नो द सिलेबस हैज बीन अपडेटेड एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फरवरी, सो डू यू हैव एनी प्लान फॉर डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स? प्लीज़ आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्योंकि डिस्टॉर्शन मेरे साइड पे जो है वो ऑडियो जी डिस्टॉर्शन। जी सर बेसिकली फरमान अली जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारा जो सिलेबस है वो अपडेट हो रहा है फरवरी से, तो कोई डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स को जो है आईसीएमए किस तरह से फैसिलिटेट करेगा? देखें, जो सिलेबस अगर अपडेट हो रहा है और दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद फरमान अली, तो डेफिनेटली जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एस्पेक्ट पे किसी भी एरिया पे काम कर रही होती है तो वो अपनी मौजूदा स्टैंडिंग को देखते हुए ही चीज़ों को डिसाइड करने जा रही होती है। तो डेफिनेटली जब सिलेबस की रिवीजन का या सिलेबस की इम्प्रोवाइजेशन का प्लान बना है और इस पे काम हो रहा है, तो डेफिनेटली डीएलपी प्रोग्राम को भी जो है वो कंसिडरेशन में रखा गया होगा। तो you will definitely not going to face any difficulty while your DLP studies, irrespective of के syllabus जो है वो कब रिवाइज होता है। So stay calm and आप अभी मौजूदा अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। You will be notified with the updates if any in that particular regard. Alright, thank you so much sir for this insightful information। हम लोग बस सेशन की एंडिंग की साइड पे मूव करने जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ आईसीएमए पाकिस्तान। आप लोगों ने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन को आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया है।
अभी भी जो लोग हमारा सेशन देख रहे हैं, उनमें से जो भी लोग हमारे अपकमिंग सेशन को ज्वाइन करते हैं, तो हम लोगों के फॉल सेशंस के एडमिशंस अभी भी ओपन है। आप लोग अपना नियरेस्ट कैंपस जो है वो विजिट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे हमारे सारे कैंपसेस की डिटेल्स मौजूद है, आप वहां से भी इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है अगेन हम अपने अदर डेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड करियर मेंटोर्स के साथ अगेन इस सेशंस को कंडक्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज।